चलिए आपको सीधे नहीं चलते लखनऊ से लाइव, जहां लखनऊ के 37वें स्थापना दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनता को संबोधित कर रहे हैं। Neglected public health spending, inadequate spending on health, and that is probably the most important lesson that we have learned from this pandemic, that public health spending has to be increased. And this has been brought out at the parliamentary committees, at the 15th Finance Commission, and also a group of ministers, that the GDP on health spending as well as health research spending has to be increased to 2.5% of the GDP from 1%. This may happen maybe before, maybe by the 75th year of independence, but the initial target was up to 2025. So that will make a tremendous difference in our healthcare. Why we have done well in this pandemic? Because India is the largest democracy with respect to people's voices to recalibrate its interventions. It has been serious right from the beginning. From January 8th, we've constituted the Joint Monitoring Group, and since then we haven't stopped even a single day. The Prime Minister created empowered groups, 11 empowered groups. The Cabinet Secretary took meetings every second day with all the secretaries, and it was a whole of government approach, calibrated, proactive, preempted, and a very graded response, which was science-driven with best practices and evidence-based. Most importantly, at the national level, we had a very strong leadership with excellent communication with all the states. There were meetings with chief ministers every 2 to 3 weeks. We continued with the 5T strategy of test, track, trace, technology, and treat, and we resisted the concept of herd immunity. We never believed in herd immunity, and we never faced the consequences of herd immunity, which countries like Sweden, United Kingdom, many parts of USA also faced when they started talking of herd immunity. So we have resisted that concept right from January, February till today. Now I will talk a little bit about testing, then a little bit about vaccine and some more. In terms of testing, in February we had more than 6,000 Shia Kargil pilgrims stranded in Iran. 6-member team of ICMR was sent to set up a lab in Tehran. They tested 2,000 people, 15% positive from 5 cities in Iran. Special flights were arranged by Indian Air Force to repatriate these people from Iran, take them to Indian Air Force Base, and then to Kargil, and also get people from Wuhan and Italy. These were all special flights of Indian Air Force that were working from February, March onwards. This is the NIV lab that was established in the embassy of the Tehran. Our concept was to establish a laboratory in every district. We had 14 mentoring institutes, and SGPGI was one of the mentoring institutes which helped us set up labs in different parts of the country. All state medical colleges and private medical colleges set up laboratories. So 650 out of 739 districts had laboratories, and we had labs in difficult terrains, in Northeast, in all the states of Northeast, in Kargil, in Ladakh, in Andaman Nicobar, and all the various difficult to reach areas. The vision was to set up a laboratory in every district. First phase was RT-PCR lab. The second phase at the district level, we set up the molecular lab, which I will talk a little bit about in TrueNat. And phase 3 was the rapid antigen test, which was the first time used in India in the month of June, and WHO pre-qualification happened in September, October. So we started using the rapid antigen test much earlier. We repurposed the TrueNat. The TrueNat is a platform for tuberculosis diagnosis. Because we have this platform which was made in India, pre-qualified by the WHO, tested by ICMR in various multi-country trials published in Lancet, which clearly showed that this platform works for tuberculosis. We repurposed it in 2018-19 for Nipah, first time in the world. We also repurposed it for leptospirosis, first time in the world, and now we have used it for COVID-19 diagnosis. This is a point-of-care molecular test. We have 25302 labs in the country with 1,008 sites in 530 districts. This lab we started in March, April, and we have tested more than 5% of the tests by this TrueNat platform. This similar molecular diagnostic test was established in the United Kingdom in the month of October called DNA Nudge, and they have just set up a few laboratories with this lab. But we were far ahead. We had this laboratory in the suitcase, and this was WHO approved, and we will be using this. We set up high throughput laboratories at various parts of the country, north, south, east, west.
Central, and we set up an assembly line of 12 RT-PCR machines at the NICPR, Noida, with a capacity of 15,000 tests per day. More recently, we set up the mobile testing laboratory in collaboration with Pfizer and ICMR, which is inaugurated by Honorable Home Minister, and which has a testing capacity of 2,000 tests per day, and now 5 are there in Delhi, Chhatarpur, Rajouri, Rohini, Dwarka, Azadpur, already functional. We started in the March and April. There was shortage of kits. It was a seller's market. China was selling them for very, very high price, and they're saying, if you don't want to buy it, give it to some other country. Gradually, all our science ministries, all our startups started setting up these VTMs, RNA extraction kits, and rapid antibody kits. And at the time in March, the price was 1,150 rupees for RT-PCR kit, 320 rupees for VTM, and 320 for RNA extraction. Today, it is 138 rupees, 91 rupees, and 94 rupees. Total test is around 320 rupees. This has gradually come down in the competition by more than 1,000 products have been validated, and these have been validated by all our ICMR centers. Most important for this mission Lifeline Plan, during the lockdown, from 24th March to 31st May, 4 phases of the lockdown, the ICMR did not sleep. There was 24/7 Ministry of Civil Aviation, Indian Air Force, Government of India implemented a special mission for 24/7 carrying of consumables, testing quantities, medical supply to various parts of the countries. Special flights were commissioned even at 2 o'clock in the night for testing quantities in various parts of the country. We have been number 2 in the world in number of testing, and today we have tested more than 15 crore tests. We have had a very calibrated testing strategy. Initially, we were just testing travelers in February, and then in March, April, TrueNat, then we started testing travelers, healthcare, SARI, eyeliner, and pool testing. And in June, we had the antigen testing, then we started doing pre-surgery, hospitalized patients, immunocompromised, and in September, it was testing on demand, and we could get testing done anywhere. We had 20 ICMR depots for seamless distribution, designated 30 QCQR labs all across the country, which were able to dispatch and suggest dispatch quantities. We had a data entry portal which looking at disease trends, policy making, resource planning, clinical decision making. All the data of all these 15,000 samples is available with us, and we are looking at various data from that. We have done the capacity assessment, matching procurements, including tendering, ordering, projections. All has been done, and more recently we have in March, April, we also created the National Task Force, which was informed to the Supreme Court, which was responsible for calibration of testing strategy, advising the government of lockdown containment strategies, develop advisories for discharge policies, oversight on ongoing research, recommend clinical trials, develop clinical management protocols, and we have published 3 issues of the Indian Journal of Medical Research, and the 4th issue is also ongoing, dedicated purely to COVID-19. Hyperimmunoglobulin like the ATS, we developed this by giving the virus to biological events, and this has been able to develop the hyperimmune serum, which we are now going to test in humans. Human monoclonal antibodies were developed by blood samples which were collected by our ICGB, ICMR, and Emory vaccine and EBT, and this has now reached its furthest testing strategy. Convalescent plasma, the largest trial in the world, largest randomized trial. Only 3 randomized trials have really shown benefit in this COVID across the world. One was the dexamethasone trial from the United Kingdom, which showed that steroids work. Second was the Solidarity trial from WHO, which showed that many antivirals, interferon, remdesivir, do not work. And this was the convalescent plasma trial, again from India, with we democratized research, and we did 40 hospitals across the country with 464 patients. During the lockdown, and from April 20th to July 20th, we recruited 464 patients, largest, which was published in the British Medical Journal, with 2 editorials and a BMJ opinion clearly showing that convalescent plasma does not work in moderate to severe patients. This was the WHO Solidarity trial. 10% of the patients of this were from India, and that was led by ICMR. We also did a genetic evolution, that there is no mutation occurring, different case and less than 1% divergence in the genetic term. So none of the mutations have culminated to change in the pathogenicity, transmissibility, or the virulence of this virus. We developed the first indigenous ELISA kit, and that was used for the National Sero Survey
The first survey was done during the lockdown in April, May. The second was done in August, September, and the third has just started this week and should be completed by the end of this month. It showed 0.7% prevalence and then 7% prevalence, and they have all been published. We did the sewage surveillance of like the polio viruses in Mumbai and demonstrated in the sewage in the month of March, April. We demonstrated this virus was present. In terms of vaccine research and development, the effort started very early in the response to the pandemic. We were the 5th country in the world to isolate the virus, and this virus led to the development of the indigenous vaccine, indigenous ELISA kits, hyperimmune horse serum, monoclonals, polyclonals, and also the screening of antivirals. India is the world's major vaccine hub with 19 companies and 24 manufacturing facilities supplying more than 60% of the vaccines to the developing world, and India accounts for 1/4 of the global manufacturing facilities. We have India-invented vaccine, which is the Bharat Biotech, which India Council of Medical Research gave the inactivated virus and did most of the studies for them. The Zydus Cadila, which is a DNA vaccine, ICMR and PPT partner. The foreign vaccine, which is the Serum Institute, where we did the clinical trial for them, and also the Reddy's Laboratories Biological and Respiratory. We know that the vaccine development requires preclinical study, small animals, large animals, phase 1, phase 2, and before phase 2 or phase 3, we can give emergency authorization, and many of these companies have now applied for this. For this private-public partnership of ICMR and Bharat Biotech, we have done the animal studies, the mouse, the rabbits, the rats, the monkeys, the hamster studies, and they have been published in Cell and Nature Communication, and the phase 1 is published in Lancet Infectious Diseases, phase 2 is in Lancet Infectious Diseases under review, and the protocol of phase 3 is in the BMJ. This was the safety study of mice, rabbits, right up to day 28, hamster study right up to day 65, and the most interesting part was the non-human primate study, where we had to do this study on monkeys. We had to capture the monkeys after getting necessary permissions during the lockdown in April, May. We tested those monkeys for any disease, tuberculosis, purchased X-ray machines. Then we challenged those monkeys, we gave them the vaccine, then we challenged those monkeys by bronchoscopy, giving them the virus by bronchoscopy, by trained specialists who are flown from Delhi to Pune to do this work in the BSL-4 laboratory of Pune, and then the bronchoalveolar lavage was collected every day by bronchoscopy, and this has been accepted in Nature Communications as one of the largest studies on non-human primates and monkeys, and demonstrated that this vaccine is working. The clinical trials, phase 1 and phase 2 have been completed. 104 days of phase 1 is available with no serious adverse effects. On 375 participants, phase 2, 380 participants, no serious adverse effect. And phase 3, 8,000 patients have been recruited, and we have to do 26,000 patients. We also tested the BCG trial in elderly and showed a good immune response in elderly above the age of 60 to 80 years. We have the world's largest immunization program with 27 million vaccinated every year, 30 million pregnancies every year, 100 million vaccinated with 27,000 vaccine storage facilities, 62% immunization coverage, 650 million doses per year. So we are well prepared for the immunization program with a COVID digital platform for vaccine delivery, and we should be able to get, as soon as we get emergency use authorization, start the vaccination of up to 30 crore of our population by June, July. We have had partnerships with DBT, DST for antiviral screening and for validation of textiles products, mobile applications, Ayush, testing laboratories, biorepositories, indigenous diagnostics, and we've had the Cabinet Secretary and the empowered groups of the National Task Force work with the state governments, Drug Controller General, National Accreditation Board, Emergency Medical Receipt Fund, NCDC, and the National Information Center, and we have been able to tackle this pandemic, and up till now we hope the positive percentage is less than 3%, 3 to 4% in the country, and hopefully with the efforts of social distancing, usage of masks and hand washing, and the use of these newer techniques and vaccines, we should be able to win this pandemic. Thank you so much for your attention. Thank you so much. प्रोफेसर भार्गव जी को बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं मुख्य सचिव एवं संस्थान के अध्यक्ष श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी से ये निवेदन करूंगी कि वे आज के वक्ता प्रोफेसर बलराम भार्गव जी को स्मृति चिन्ह प्रदान करने की कृपा करें। प्रोफेसर भार्गव की ओर से यह भेंट
संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर के धीमन जी स्वीकार करेंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से यह अनुरोध करूंगी कि इस शुभ अवसर पर वे हमारे सम्मुख अपना संबोधन प्रस्तुत करने की कृपा करें। धन्यवाद। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान लखनऊ के 37वें स्थापना दिवस समारोह में आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित उत्तर प्रदेश के शिखर पुरुष जनप्रिय नेता आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, मंच पर विराजमान हमारे साथी मंत्री श्री संदीप कुमार सिंह जी, राज्य मंत्री चिकित्सा शिक्षा मंत्री डॉक्टर बलराम भागवत जी, महानिदेशक ICMR नई दिल्ली, हमारे साथ वर्चुअली जुड़े हैं, श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, डॉक्टर रजनीश दुबे, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा, डॉक्टर आर के धीमन, निदेशक SGPTI, डॉक्टर SK मिश्रा, संकायाध्यक्ष SGPTI, समस्त फैकल्टी मेंबर्स, छात्रगण, अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं उपस्थित सभी सम्मानित बहनों और भाई, मुझे अत्यंत हर्ष है कि आज संस्थान के 37वें स्थापना दिवस समारोह में आप सभी के साथ मुझे भी इसमें पार्टिसिपेट करने का अवसर मिल रहा है। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा इस संस्थान के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण बराबर रखने के लिए और समय समय पर मार्गदर्शन करने के लिए मैं उनको हृदय से बधाई देता हूँ कि जिस प्रकार से उन्होंने हर स्तर पर इस संस्थान के बलबूते और विकास के लिए अपने निर्देश भी दिए और हमारा मार्गदर्शन भी किया। बहनों भाइयों, आज 37वां स्थापना दिवस है इस संस्थान का और इस जो कालखंड बीता है उसमें SGPTI की जो ख्याति अर्जित की वो अपने आप में एक अत्यंत सराहनीय, अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है और इसके पीछे कितने लोगों की साधना, कितने लोगों का समर्पण और कितने लोगों के द्वारा आत्मीयता से उन मरीजों के साथ पेश आना है, जिसकी वजह से संस्थान की ये ख्याति बनी। अधिकृत रूप से एम्स नई दिल्ली और चंडीगढ़ के बाद हमारा नाम दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता यह है कि इस संस्थान ने कई ऊंचाइयों को छुआ है और यहाँ के जितने भी
डायरेक्टर से लेकर जितने फैकल्टी मेंबर्स हैं, जितने भी यहाँ पर डॉक्टर्स हैं, उन सभी के मेहनत का, सभी के समर्पण भाव से कार्य करने का ये परिणाम है कि ये आज ये इतनी ख्याति अर्जित कर सका है। आदमी की उम्र से लंबी उसकी ख्याति की उम्र होती है, उसकी प्रतिष्ठा उसकी उम्र के बाद भी याद की जाती है। आदमी चला जाता है, उसके बाद उसकी ख्याति रह जाती है। और मैं समझता हूं कि जितना बेहतर तरीके से यहाँ के लोगों ने हर प्रकार से सक्रियता से, संवेदनशीलता से लोगों के प्रति जो आत्मीयता का भाव प्रदर्शित किया और बेहतर लक्ष्य दिए, बेहतर इलाज किया, उसी का एक परिणाम है वर्तमान SGPGI की ख्याति। आज हम अपने जो फैकल्टी मेंबर्स हैं उनसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि 37 वर्ष के अंतराल के बाद हमको सबसे ज्यादा इस बात के लिए सोचना चाहिए कि इस संस्थान की प्रगति और कैसे और किस प्रकार से हम इसको बेहतर तरीके से आगे बढ़ा सकें, क्योंकि जो कुछ हमको विरासत में मिला, जो कुछ यहाँ की परंपराएं रही, उसको और आगे बढ़ाने का और अधिक प्रशंसा फैकल्टी मेंबर्स की हो, चिकित्सकों की हो, हमारे सीनियर रेजिडेंट्स की हो, इसके लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम लोगों से और अधिक अपनी आत्मीयता से और अधिक बेहतर तरीके से उनके इलाज में सहभागी बने या उनका इलाज करें। मुझे इस बात की बहुत खुशी है, पता चला कि कल यहाँ पर अनुसंधान दिवस भी मनाया गया। ये भी अपने आप में मील का पत्थर है कि हम लगातार नई खोजों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि मेडिकल हेल्थ में और मेडिकल एजुकेशन में लगातार रिसर्च होती रहती है और रिसर्च दिवस को किसी न किसी रूप में सेलिब्रेट करना ये भी अपने आप में एक स्तुत्य कार्य है। इसके लिए मैं विशेष रूप से डॉक्टर भीमन को, जो वर्तमान में डायरेक्टर है और पूरी रुचि के साथ, पूरी तन्मयता के साथ इस संस्थान के विकास के लिए वो समर्पित है। मुझे बहुत खुशी हुई कि जिस प्रकार से उन्होंने अपनी कार्यशैली यहाँ पर प्रदर्शित की, यद्यपि वो यहीं के AGMU के छात्र रहे और बराबर लखनऊ से उनका विभाग रहे चंडीगढ़, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने आने के बाद यहाँ पर सक्रियता से काम किया, उससे ये पता चलता है कि लगातार इस संस्थान के प्रगति के लिए आगे भी बेहतर तरीके से काम करेंगे। आज स्थापना दिवस पर एक बात मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूं कि जब इस संस्थान का शुरुआत हो रही उस समय ये कॉन्सेप्ट किया गया था कि इसमें 1800 बेड होंगे, लेकिन आज तक हम इन 1800 बेड को फंक्शनल नहीं कर पाए। आज के इस मौके पर हम अपने डायरेक्टर से विशेष रूप से अपेक्षा करेंगे कि इस दिशा में वो जरूर आगे कार्रवाई करें, क्योंकि ये रेफरल हॉस्पिटल है तो रेफरल हॉस्पिटल में अस्पतालों से रेफर होकर जो पेशेंट्स आते हैं उनके लिए उनकी ख्याति अच्छी है, इसलिए ज्यादातर लोग चाहते हैं कि हमारा इलाज SGPGI में हो, एक मन की संतुष्टि भी मरीज के इसी में हो। इसलिए इस दिशा में भी हमारा काम होना चाहिए। साथ ही जिस प्रकार से कोरोना जैसी महामारी को SGPGI ने बहुत खूबसूरत तरीके से, बहुत बेहतर तरीके से और आत्मीयता के साथ जो यहाँ के लोगों ने अलग से कोविड हॉस्पिटल की रचना करके लोगों को जो ट्रीटमेंट दिया,
लोगों को इलाज दिया, उसके लिए सराहना चौबोल है और एक अच्छी एक चुनौती को ठीक प्रकार से फेस भी किया और उसने प्रभाव भी किया। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर से ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ आपके डायरेक्टर को और आपकी पूरी टीम को, जिन्होंने इस SGPGI को और अधिक विकास के पथ पर अग्रसर करने का बीड़ा उठाया और हमारा सक्रिय सहयोग इसके साथ रहेगा। मुझे इस बात की भी खुशी है कि कई डिपार्टमेंट्स और यहाँ पर साथ ही ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसा चैलेंजिंग जॉब SGPGI कंप्यूटिंग कर रहे हैं और अधिक बेहतर तरीके से इसको परफॉर्म करें, ज्यादा से ज्यादा डिपार्टमेंट्स यहाँ पर संचालित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम एक बार फिर से सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति भी आभार प्रकट करते हैं कि जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से इस स्थापना दिवस के अवसर पर आज यहाँ पर अपना बहुमूल्य समय दिया और हमें उनका मार्गदर्शन मिलेगा। एक बार फिर सबके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत गर्व का विषय है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश के 6 मेडिकल कॉलेजों में वर्चुअल ICU की स्थापना करने की पहल की है। इसके लिए हमारे संस्थान SGPGI एवं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड के बीच एक द्विपक्षीय समझौता भी किया गया है। इस अवसर पर संस्थान के निदेशक एवं पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर पर्सनल श्री को सम्मान संस्थान की परंपरा रही है कि उत्कृष्ट कार्य करने वाले सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक एवं कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए। इसी काम में इस बार के बेस्ट रिसर्च अवार्ड का भी शुभारंभ किया गया है। परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री से मेरा अनुरोध है कि वे अपने कर्तव्यों से इन सुपात्रों को पुरस्कार प्रदान करने की व्यवस्था करें। बेस्ट रिसर्च पेपर अवार्ड के तहत 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहली डिसिप्लिन मेडिकल, इसमें इंटरव्यू को इंटरव्यू से प्रोफेसर अनुष्ठ श्रीवास्तव, प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर मोहित सिंह शर्मा, सर्जिकल डिसिप्लिन से इनको कार्य कर रही प्रोफेसर गौरव अग्रवाल, न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट एडिशनल प्रोफेसर अनंत मुखर्जी, सर्जिकल
Anaadi, Anaadi, and STEM Research Center. Anaadi Department of Molecular Medicine Biotechnology, Adi Kumarji. Assistant Professor. Molecular Medicine and Biotechnology, Associate Professor Adi Kumarji. Associate Professor Endocrinology, Rohit and Sinha. इसी क्रम में हमारे बेस्ट बीएम सीनियर अध्ययन डॉक्टर आनाद मॉडल जयपुर यूनिवर्सिटी बेस्ट सीनियर अध्ययन एंडोसर्जरी डॉक्टर कृष्णा प्रेस बेस्ट एमडी जूनियर अध्ययन डॉक्टर श्रुति पांडे एनएसपीसीआई डिपार्टमेंट से बेस्ट नर्सिंग स्टाफ Miss Sarah Gautam, Sister Grade 1, Endocrinology. Best Nursing Staff, Sister Grade 2, Mr. Nikhil CD. अगर मैं फार्मेसिस्ट मिस्टर CD उपलब्ध नहीं है, आगे फाइल है, इसलिए इनका अवार्ड फ्रॉम जॉब का रिसीव करें। Best Technician Grade 1, माइक्रोबायोलॉजी विभाग से मिस्टर बी केशव। अनुरोध करूंगी समारोह के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि कृपया आप अपने आर्थिक वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। विभाग के राज्य मंत्री श्री संदीप सिंह जी, प्रदेश के मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, अपर मुख्य सचिव चिकित्सा नेता श्री रजनीश दुबे जी, अपर मुख्य सचिव वित्त, अपर मुख्य सचिव गृह श्री अमरीश अवस्थी जी, संस्थान के निदेशक धीमान जी, सहायक अध्यक्ष डॉक्टर एस के मिश्रा जी, और अभी वक्तव्य जिन्होंने कोविड-19 पर अपना एक प्रेजेंटेशन हम सबके सामने प्रस्तुत किया है, डीजी आईसीएमआर प्रोफेसर रोमा भागवत जी, एसडीटीआई के सभी यहाँ पर उपस्थित सीनियर फैकल्टी और उपस्थित संस्थान से जुड़े हुए सभी यहाँ के चिकित्सकगण, मैं सबसे पहले आप सबको इस संस्थान के 37 वर्ष इस यात्रा के लिए हृदय से बधाई देता हूँ और इस संस्थान के प्रति अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। मुझे प्रसन्नता है क्या एसडीटीआई और पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड ने एमओयू पर साइन किया है, जिसमें
इसके लिए ₹7 करोड़ की सुविधा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन से उत्तराखंड से SBCGI को यहाँ प्रदान कर रहा है। मैं इसके लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हृदय से धन्यवाद देते हुए SBCGI जैसे प्रतिष्ठित संस्थान को एक सुविधा प्राप्त हो रही है, इसके लिए संस्थान को हृदय से बधाई भी देता हूं, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। वास्तव में टेलीमेडिसिन आपकी आवश्यकता है और हम लोगों ने कोविड-19 के खिलाफ चल रही देश की इस लड़ाई को प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में टेलीमेडिसिन की उपयोगिता को बहुत नजदीक से महसूस किया है। लॉकडाउन के बाद जब कोविड-19 के केसेस बढ़े तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश के अंदर इतनी बड़ी आबादी का प्रदेश और 24 करोड़ लोगों को कोविड-19 के संक्रमण से भी बचाना है और जब वो कोविड-19 की चपेट में आ गए हों उन्हें बेहतर उपचार देकर के सुरक्षित उनके घरों तक पहुंचाने की व्यवस्था भी करनी है। इसके लिए हर एक जनपद में डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल बनाए गए। जहां पे हमारे पास मेडिकल कॉलेज थे वहां पर मेडिकल कॉलेजेस में, जहां मेडिकल कॉलेजेस नहीं थे वहां पर हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को या फिर कोई एक स्टेट गवर्नमेंट की खाली बिल्डिंग थी जिसको हम लोग 300 बेड का कोविड हॉस्पिटल बना सकते थे, तो हम लोगों ने वहां पर उसे कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया और उस समय मैं इस बात को महसूस किया। प्रारंभिक 2 महीनों के अंदर मेरे मन में इस बात को आया कि अगर हम लोग जब भी मैं हॉस्पिटल में फोन से बातचीत करके पूछता था क्या स्थिति है, क्योंकि हमने डेटा व्यवस्था की थी और जिले के लिए हमारे कंट्रोल सेंटर भी बनाए थे, मुख्यमंत्री कार्यालय भी और चिकित्सा शिक्षा मंत्री का कार्यालय भी उन लोगों के साथ संवाद बनाएगा, प्रत्येक मरीज के साथ, प्रत्येक विशेषज्ञ के साथ, पैथोलॉजिस्ट के साथ। वहां से जो बातें क्षण करके हमारे सामने आती थी उसमें महसूस होता था कि वास्तव में बहुत सारे हमारे पास विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं थे। तो हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 3 संस्थानों को, SBCGI को, PCMU को और RNS को इस बात की जिम्मेदारी दी कि वर्चुअल ICU ये लोग प्रारंभ करें और मुझे लगता है कि SBCGI ने जो वर्चुअल ICU यहाँ से प्रारंभ किया बहुत सफल रहा है, क्योंकि वह प्रदेश के अधिकतर मेडिकल कॉलेजेस को हम लोगों ने इसके माध्यम से जोड़ा है और आज प्रदेश के 6 संस्थान को टेलीमेडिसिन के साथ जोड़ने के लिए मेडिसिन की इस ICU की सुविधा के साथ जोड़ने के लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन यहाँ पर CSR से मदद किया है। मैं इसके लिए पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन को हृदय से बधाई देता हूँ, अपनी शुभकामनाएं भी देता हूँ। वास्तव में किसी भी संस्थान के लिए 37 वर्ष का समय अपने को शासित करने का एक समय हो, बड़ी लक्ष्य कालावधि होती है। इस अवधि में हम पता लगा सकते हैं कि संस्थान की दिशा क्या है, संस्थान कहाँ जा रहा है, संस्थान के सामने आगे का भविष्य कैसा है। और बताया जाए कि 37 वर्ष SBCGI के इतिहास में बहुत आगे रहे हैं और एक नए विश्वास के साथ में प्रदेश ही नहीं बल्कि आसपास के राज्य भी SBCGI को देखते हैं, जहां SBCGI से जुड़े हुए जहां के फैकल्टी मेंबर्स को, यहाँ के जो मेडिकल से जुड़े हुए जो भी स्टूडेंट्स हैं, सबके लिए जहां ये बहुत गौरव की बात है। लेकिन वहीं हम सबके सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों से हम कैसे निकल सकते हैं, यह भी हमारे लिए वास्तव में उसकी तैयारी के लिए हम सबको अपने आप को हमेशा अपडेट करना पड़ेगा। याद करना जहां संभावना होती है लोगों की अपेक्षाएं भी वहां होती है और जहां पर लोगों को लगता है कि कुछ नहीं कर सकते वहां लोग अपेक्षा भी नहीं करते।
जैसे संस्थान आ चुके हैं। मैं हमेशा बात का बहुत जरूरी रहा जब एससीपीजीआई की तरफ से आता है जैसे एम्स के संपर्क मान्यता मिलनी चाहिए। मैं कहता था इसको स्वयं भी इसके पास क्षमता है कि एम्स से आगे जा सकता है, लेकिन हम लोग जो एक मानसिकता हो जाती है कि नहीं हम भी उसके पीछे चलेंगे। यानी मेडिकल का अध्ययन एक ऐसा है जहां पर हम लोग टीचिंग, टेस्टिंग और रिसर्च के माध्यम से अपने आप को प्राप्त कर सकते हैं, और एससीपीजीआई की स्थापना के पीछे का उद्देश्य ही यही था। एससीपीजीआई के दौरान अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल भी की, लेकिन कहीं ना कहीं जो ये मानसिकता थी कि हमें भी समर्थता चाहिए और समर्थता के नाते हम कुछ लोगों होते हुए दिखाई दिए, मुझे लगता है उससे करना पड़ेगा, एक नई सोच प्रतिस्पर्धा में एससीपीजीआई को खड़ा होना पड़ेगा। याद करिए वर्ष 2020 तक आपके पास प्रदेश में सबसे प्रतिष्ठित संस्थान के रूप में एससीपीजीआई है, लेकिन 2021 में उत्तर प्रदेश में 2 नए एम्स खुद प्लेस काम होने वाले हैं, एम्स गोरखपुर और एम्स रायबरेली। इसके बाद एम्स के संपर्क संस्थान बीएचयू वाराणसी की तबाह हो रहा है, और प्रदेश के अंदर अन्य संस्थान को भी विकसित करने की बड़ी कार्ययोजना हम लोगों ने आगे बढ़ाई है। हम लोग जानते हैं यहां पर कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि जहां पे इतनी संभावनाएं उन्हीं के बीच में हमें अपनी संभावनाओं को आगे बढ़ाना है, वहां पे आपके लिए यानी पूरा सिस्टम ही ट्रीटमेंट करा है। अरे टीचिंग के माध्यम से रिसर्च को आगे बढ़ाना, इन संभावनाओं के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म एससीपीजीआई के लिए उत्तर प्रदेश उपलब्ध है। उस प्लेटफॉर्म का बेहतर उपयोग हम कैसे कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास करना और उसके लिए कार्य करना। मैं तो मानता हूं कि सामान्य गरीब एससीपीजीआई से नहीं आता, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के या मेडिकल कॉलेज से रिफर होने के बाद ही कोई कहते हैं यहां पर आता है, और हम लोगों ने प्रदेश के अंदर और मेडिकल कॉलेजेस का एक बहुत अच्छा संपर्क विकसित किया। 1945 से लेकर के 2014 तक प्रदेश के अंदर केवल 12 मेडिकल कॉलेज था, और 2017 से 2020 के बीच में हम लोग वर्तमान में 30 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नए बनाए हैं। आप मान कर सकते हैं कि पीजी के साथ प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश की सरकार कार्य कर रही है, और ये 30 मेडिकल कॉलेज के साथ हर एक जिले में हम लोग एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंसेज उपलब्ध करा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का बीएससी का पीएचसी की एक्सटेंशन की कार्रवाई प्रदेश के अंदर चल रही है, और जिन्हें इसका नहीं लगता, जिन्हें लगता है यहाँ से 5 साल पहले का उत्तर प्रदेश है, उन्हें लगता है कि उत्तर प्रदेश में सबसे प्रोसेस बहुत हुआ है, और जिन्होंने नजदीक से देखा है वे लोग इस बात पर आपको देखिए कोरोना के बाद लड़ाई बहुत मजबूती से जीतेंगे, और जिन्हें मालूम नहीं पाकिस्तान पीछे और हम भी कहते थे हम कोरोना के खिलाफ लड़ाई को पूरी मजबूती के साथ जीतेंगे, उत्तर प्रदेश में बहुत नहीं होने देंगे। और मैं प्रसन्नता कि उत्तर प्रदेश में 3 वर्षों में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान दिया, और परिणाम कोविड-19 के मैनेजमेंट में हम सबको देखने को मिला, और इसका परिणाम है कि जब WHO जैसी संस्थाएं भी उत्तर प्रदेश के कोविड मैनेजमेंट को उसकी सराहना करने से अपने को रोक नहीं पाती है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। लेकिन इसमें एक संस्थान ने योगदान किया, हर टीम है। यहाँ पे हमारे कोविड हॉस्पिटल से उनमें जो भी उनके साथ जो भी चिकित्सा जुड़े थे या मेडिकल संस्थान से जुड़े थे, जो फैकल्टी मेंबर जुड़े हुए थे, वे सभी को उसमें साथ नहीं रहे थे, लेकिन साथ साथ हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर जिले स्तर पर भी हम लोगों ने कोविड हॉस्पिटल बनाए थे। वहां पे विशेषज्ञ चिकित्सकों ने
अपने स्तर पर वहां पर योगदान दिया। बहुत ऐसे हैं हम लोगों ने चाइल्ड मेडिकल कॉलेज को भी कोविड हॉस्पिटल के रूप में विकसित किया था, क्योंकि हम लोगों ने उसके लिए पहले शर्त ये रखी थी कि कोविड हॉस्पिटल और वहां कोविड अलग अलग होंगे, और कोविड और वहां कोविड को हम एक साथ नहीं रहने देंगे, एक संस्थान में एक बिल्डिंग पे नहीं रहने देंगे। और उसका परिणाम बहुत अच्छा हमारे सामने आया और हम लोगों को उसमें बहुत सफलता प्राप्त हुई। लेकिन अभी जो प्रोफेसर प्रणा भार्गव कह ही रहे थे कि वैक्सीन आ रही है, लेकिन तब तक हमें कुछ सावधानी तो बरतनी पड़ेगी। लेकिन उस सावधानी में हम प्लान कर जाए कि हम सबसे एक चिंताजनक स्थिति है, और मैंने कोविड-19 के दौरान देखा बहुत सारे लोग को प्लान का रास्ता अपनानी है। हम लोगों को कोविड हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरे लगाने पड़े कि लोग वहां जा रहे हैं कि नहीं जा रहे देखने के लिए, तो अच्छा तो पैरामेडिक्स वहां जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, विशेषज्ञ चिकित्सक जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं, सीनियर फैकल्टी वहां जा रही है नहीं जा रही है। ये नौबत नहीं आना चाहिए थी, लेकिन ये नौबत भी आए तो उसका विकल्प भी निकला। और मैं चाहूंगा कि एक अच्छा अवसर था हमारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए, जब हेल्थ केयर के लिए हम जनविश्वास को एक बार फिर से अर्जित कर सकते थे, और जिन संस्थाओं ने अच्छा काम किया उन्होंने जन प्रतिष्ठा को जनविश्वास को जीता है। लेकिन जहां पर कमजोर कार्यवाही थी वहां से जनता ने उसी प्रकार की नेगेटिविटी उन संस्थाओं के प्रति और उन लोगों के प्रति व्यक्त भी की है। क्योंकि एक एक व्यक्ति कोविड जैसी बीमारी कहती है कि जहां पे हर व्यक्ति के पास आज के दिन से स्मार्टफोन है, वो एक एक प्रतिक्रिया वहां से हम लोगों के पास देखता था, और हम लोगों ने एक एक पेशेंट के साथ 3-3, 4-4 प्रतिदिन संभावना कराते थे, और उसका परिणाम क्या होता कि लोग एक एक जानकारी हम लोग के पास आती थी, कैसे उन्हें भोजन मिल रहा है, उनके वार्ड में सफाई है कि नहीं है, उनके वार्ड में बेडशीट बदली जा रही नहीं जा रही है, वहां पैरामेडिक्स उपस्थित रहता ही नहीं रहता है, वहां पे डॉक्टर आए नहीं आ रहे हैं। अगर डॉक्टर नहीं आए हैं, पैरामेडिक्स नहीं आए, तो आप हमें ही नोट करा दीजिए कि आपका ऑक्सीजन लेवल क्या है, आपका टेम्परेचर क्या है, आप बता दीजिए। हम दोनों से बात करते थे, वो आइसोलेशन में रहने वाले पेशेंट से भी और जो हॉस्पिटल में है उससे भी हम लोगों का निरंतर इस प्रकार का संवाद होता था, और उसका परिणाम है जहां पर थोड़ी लापरवाही होती थी तो वहां पर शासन फिर से वहां पर पहुंच करके उसको दूर करने का प्रयास करता था, और उसका परिणाम हम सबके सामने अच्छे ढंग से आया। और खासतौर पर मैं धन्यवाद दूंगा ICDPI को, जिन्होंने बच्चों ICU को बहुत बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा करके प्रदेश के मेडिकल कॉलेजेस को एक विशेषज्ञ जो टेलीमेडिसिन की फैसिलिटी थी, ICU की फैसिलिटी थी, उससे लाभान्वित किया। इसका काफी बड़ा लाभ प्रदेश के बहुत जो कोविड पेशेंट थे उनको इसका बहुत लाभ हुआ। लेकिन अभी एक लंबी यात्रा आगे लेकर चलनी है, और याद करना कि अगर हम समय के अनुरूप नहीं चले, समय के धारा के अनुरूप अगर हम लोगों ने आज के प्रदेश में अपने को नहीं ढाला तो आप पिछड़ जाएंगे, प्रतिस्पर्धा से पकड़ हो जाएंगे। एम्स जैसे संस्थान से आपका प्रतिस्पर्धा होने वाली है। तकनीक से आप सबको अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा, और जिससे जो आपके सामने आने वाले समय की चैलेंजेस होंगे उस जिससे आप अपनी तैयारी करें। और मैं सबसे पहले तो ICDPI से कहूंगा कि आप अपनी जनरल OPD प्रारंभ कर दीजिए। अब कोरोना से बहुत भयभीत मत होइए, सावधानी और सतर्कता रखिए। अगर डॉक्टर ही OPD छोड़ करके गायब हो जाएगा तब तो फिर हमने इस मामले में रिसर्च कर दिया, तब तो हम लोग फिर इसके आगे जो उपचार के लिए और जो एक कॉमन मैन के अंदर है प्राइवेट हॉस्पिटल अधिकतर अपनी जनरल OPD प्रारंभ कर चुके हैं, और अधिकतर क्षेत्रों में जनरल OPD चल रही है। ICDPI क्यों नहीं कर पा रहा, KCMU क्यों नहीं कर पा रहा, RIS क्यों नहीं कर पा रहा? अगर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कर सकते हैं, ये हमें सरकार अपनी प्रारंभ करनी पड़ेगी। दूसरा, शासन की योजनाओं को भी अपने साथ जोड़ना पड़ेगा और पूरी मजबूती के साथ जोड़ना पड़ेगा। जैसे आयुष्मान भारत की योजना है,
रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले पेशेंट को 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य बीमा का कवर दे रही है। आयुष्मान भारत की सुविधा गरीबों को हरेक को मिले। हमें यह देखना चाहिए कि एसबीपीजीआई जैसा संस्थान हर एक पेशेंट के लिए बिना भेदभाव के स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सदैव तत्पर है। यहाँ पे सिफारिश ही नहीं बल्कि कोई भी पेशेंट आएगा उसको हम बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराएंगे। आयुष्मान भारत की सफलता एक गरीब पेशेंट को मिलने वाली स्वास्थ्य सुविधा पर निर्भर करेगी और जिससे आपको तैयारी करनी पड़ेगी। जैसे कि आयुष्मान भारत में यहाँ पे लगभग 750-800 के आसपास पेशेंट को ट्रीटमेंट की सुविधा दी गई, लेकिन ये बढ़नी चाहिए और अच्छे ढंग से इसको आगे बढ़ाने की कार्रवाई करनी चाहिए। एसबीपीजीआई का ट्रॉमा सेंटर बहुत दिनों तक बहुत संबोध कर रखा हुआ है। एडीएम चलाएगा, एसबीपीजीआई चलाएगा, कोई और चलाएगा, कोई और चलाएगा। अंतर मैंने कहा मैं कभी नहीं एसबीपीजीआई इसको चलाए। एसबीपीजीआई के नजदीक एसबीपीजीआई को चलाना चाहिए और एसबीपीजीआई ने वहां पे कोविड हॉस्पिटल बनाया। आपने देखा होगा कोविड हॉस्पिटल से जो कोई भी कोविड हॉस्पिटल में आपके यहाँ आया वो संतुष्ट होकर के गया। उसने प्राथमिक रूप में जो थोड़े बहुत शिकायत आई होंगी, लेकिन बाद में जब वहां पर सभी सीनियर फैकल्टी जानी प्रारंभ हुई उसके बाद ट्रॉमा सेंटर में जो कोविड हॉस्पिटल बना, कोविड हॉस्पिटल में एक नई पहचान दी है और एसबीपीजीआई की जो विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं थी उससे लोगों के मन में एक विश्वास इस आपात सेंटर भी भरने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और मैं चाहूंगा कि आफ्टर कोविड हमें ट्रॉमा सेंटर को फिर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने की तैयारी करनी चाहिए, उसको बहुत अच्छे ढंग से संचालित करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश की आवश्यकता है। आज के प्रदेश में हम लोग देखेंगे तो वह वर्तमान की उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में बहुत सहायक हो सकता है जो जिसके लिए एसबीपीजीआई जाना जाता है। यहां पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको लेकर के अभी हमें अपने कार्यक्रम को तेजी से आगे बढ़ना पड़ेगा। खासतौर पर जो इलेक्ट्रोलॉजी विभाग में क्रियाशील करने की कार्रवाई है या यहाँ पर ऑर्गन ट्रांसप्लांट की कार्रवाई है, लिवर ट्रांसप्लांट का है या फिर हार्ट ट्रांसप्लांट की सुविधा को, ये सब कार्य पीजीआई में अब तक प्रारंभ हो जाने चाहिए। पीजीआई जैसा संस्थान जो उत्तर प्रदेश में उत्तर भारत का एक प्रतिष्ठित संस्थान माना जाता है और इसमें अगर आप पीछे रह गए कोई नए संस्थान आगे आकर के इस कार्य को जो पहला कार्य करेगा वो इसमें लीड कर देता है और हमें तकनीक के साथ अपने को अपडेट करना पड़ेगा। और ट्रांसप्लांट के लिए, लिवर ट्रांसप्लांट के लिए या किसी भी हार्ट ट्रांसप्लांट के लिए इसकी दिशा में हमें तेजी से कदम बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आप अपनी टीम को इसके लिए तैयार नहीं कर पाएंगे तो कहीं न कहीं पीछे हो जाएंगे। और जो आज के दिन पर प्रदेश के अंदर पीजीआई की जो प्रतिष्ठा है उस प्रतिष्ठा के अनुरूप हम लोगों को इस पर कार्य करना होगा। और आज के अवसर पर पीजीआई अपने 37वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम कर रहा है तो मैं अवसर पर चाहूंगा कि एडवांस डायबिटीज सेंटर की स्थापना के हिसाब में भी पीजीआई काम करेगा तो बहुत अच्छा होगा। राज्य सरकार में आप लोगों को सरकार का सहयोग करेगा और जहां पर कोई भी संस्थान कार्य आगे बढ़ाने के लिए तैयार होता वहां पे दिशा ठीक होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए। वहां पर उसके सामने न फंड की प्रॉब्लम हो सकती है और उसके सामने अन्य किसी भी प्रकार की कोई समस्या उसके सामने नहीं हो सकती है। कहीं भी किसी भी प्रकार की मैंने इसलिए जब विभाग का दायित्व दिया तो मैंने वित्त मंत्री को ही ये विभाग भी दिया जिससे वित्त की कोई समस्या आपके पास में आ जाता है, लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर के कार्यवाही करना ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। बेस्ट प्रैक्टिस ये होगी या आप एक एक व्यक्ति को संतुष्ट करके यहां से देखें और इसी में पीजीआई की प्रतिष्ठा है। यह तो यह व्यक्ति के कृत्यों पर निर्भर करता है। अच्छा करेंगे यश के भागीदार बनेंगे, गलत करेंगे या चैलेंज से भागेंगे तो अपयश के भागीदार बनेंगे। प्रदेश में जब याद है जब 22 मार्च को जनता कर्फ्यू का आयोजन था तो जनता कर्फ्यू के बाद 7:30 बजे बाद पहले उपराष्ट्रपति जी का फिर राष्ट्रपति जी का फोन आया।
दोनों ने एक ही बात चिंता व्यक्त की। 22 मार्च को मुझे याद है शाम के समय दोनों का फोन आया। दोनों ने कहा यूपी जी कोरोना आ गया है, हम लोग यूपी के बारे में चिंतित हैं, क्या होगा यूपी का। मैंने कहा क्या समस्या है यूपी से। उन्होंने कहा यूपी कैसे बचेगा, इतना पूरा हेल्थ सिस्टम वहां का, इतनी घनी आबादी, और हमें तो भय है कि लॉकडाउन अगर लगता है, तब तक लॉकडाउन की घोषणा नहीं थी, लेकिन अगर बंदी होती है और लगभग 1 करोड़ के आसपास यूपी के माइग्रेंट लेबर यूपी में आएंगे, तो यूपी में आप किसी को बचा नहीं पाएंगे। और आपने देखा होगा अगर हम भी उन लोगों की तरह भागे होते जिन्होंने सेल्फ क्वारंटीन में अपने को डाला था, तो क्या हम यूपी को बचा पाते। 25 मार्च से लेकर के आज भी सुबह, आप सुबह 11 बजे से हम लोग डॉक्टर शकुंतला मिश्रा धर्मार्थ विश्वविद्यालय के कॉन्वोकेशन में मुझे आना था 11 बजे, लेकिन 11 बजे के पहले मैंने कोविड-19 की बैठक ली है। यानी कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैंने बैठक फिजिकली, और अगर मैं लखनऊ से बाहर हूं तो मैंने वहां से वीसी के माध्यम से या फिर अन्य माध्यमों से इसकी बैठक ली है। एक एक संस्थान के बारे में, एक एक पेशेंट के बारे में, एक एक मौत के बारे में, कहां पे मौत कैसे हुई, क्या कारण है, क्या हम आगे सुविधा दे रहे हैं, इन सब के बारे में निरंतर लोग बैठक दे रहे हैं। और ये केवल स्वास्थ्य के बारे में नहीं, शुरुआत में तो आपने देखा स्वास्थ्य हेल्थ की प्रॉब्लम कम, शुरुआत में तो व्यवस्था की थी, 2 स्टेप डिलीवरी कैसे हमें देना है, कैसे एक एक व्यक्ति पर हमें खाद्यान्न पहुंचाना है, कैसे हम लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर हम उन सुविधाओं को दे सके। माइग्रेंट लेबर जब आना प्रारंभ हुई तो सुरक्षित उन्हें घर तक कैसे पहुंचाएंगे, कैसे हम उनको सुरक्षित रखेंगे, कैसे क्वारंटीन सेंटर की व्यवस्था का संचालन करेंगे, ये सभी चैलेंजेस थे। लेकिन हम लोगों ने प्लान का रास्ता नहीं अपनाया, हमने उस चुनौती को चुनौती के रूप में स्वीकार किया और सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करते हुए एक एक चुनौती आगे गई और हम सफलतापूर्वक उसका मुकाबला करते हुए सफलता की नई ऊंचाई को प्राप्त करते गए। और आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर कोविड पॉजिटिविटी में भी और सेफ मार्जिन उत्तर प्रदेश का परिणाम देश की किसी भी अन्य राज्य की तुलना में बेहतर उदाहरण है। और इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं कि टीम वर्क है, यह व्यक्ति के लिए भी और व्यवस्था के लिए भी वो उतना ही महत्व रखता है। इस टीम वर्क को लेकर के हम लोग बेहतरीन कार्य कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा कि एसजीपीसीआई इसके लिए अपने आप को तैयार कर पाएगा तो वास्तव में न केवल संस्थान का जो यशस्वी और गौरवशाली अतीत रहा है, वह उसको भविष्य में भी इसी गौरवशाली व्यवस्था के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। और अगर किसी भी एक स्तर पर लापरवाही हुई तो स्वाभाविक रूप से उस यश के साथ और व्यक्ति भी यश का भागीदार बनता है, संस्थान का एक एक व्यक्ति। और जब किसी संस्थान के साथ अपयश जुड़ता है तो उस अपयश का भागीदार हर एक व्यक्ति ही बनता है। टॉप टू बॉटम हर एक व्यक्ति, कोई भी उससे वंचित नहीं रह सकता है। ये हम पर निर्भर करेगा हम किस रूप में से आगे बढ़ना चाहेंगे। और मैं विश्वास करता हूं कि 37 वर्षों की गौरवशाली परंपरा को आप और भी अच्छे ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। एसजीपीसीआई के लिए जो वर्तमान के संकल्प हैं, वर्तमान की जो चुनौतियां हैं, चुनौतियों से आगे बढ़ते हुए हम लोग नए संकल्पों के पथ पर आगे बढ़ सके, इस विश्वास के साथ मैं 37वें स्थापना दिवस के अवसर पर एसजीपीसीआई की पूरी टीम को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि निश्चित ही एसजीपीसीआई स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश और देश के अंदर एक नई ऊंचाइयों को छूने का कार्य करेगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार।
अब मैं संस्थान के निदेशक प्रोफेसर आर के धूमल जी से अनुरोध करूंगी कि वे संस्थान की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी एवं मंच पर आसीन सभी गणमान्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करें। सर्वप्रथम माननीय मुख्यमंत्री जी को, निदेशक महोदय से अनुरोध है कि वे माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें। माननीय मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए निदेशक महोदय जी से मैं अनुरोध करूंगी। माननीय मंत्री सुरेश खन्ना जी को, राज्य मंत्री माननीय श्री संदीप सिंह जी, निदेशक महोदय से अनुरोध है मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, एवं अपर मुख्य सचिव डॉक्टर रजनीश दुबे जी। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा डॉक्टर रजनीश दुबे जी को, अंत में मैं धन्यवाद प्रस्ताव हेतु आमंत्रित करती हूँ संस्थान के संकाय अध्यक्ष प्रोफेसर एस के मिश्रा जी को। On behalf of the director and HPJ family, it gives me immense pleasure to extend word of thanks to our beloved Honorable Chief Minister Sri Yogi Adityanath ji to grace the occasion as the chief guest in spite of his busy schedule. Sri Suresh Khanna ji, Honorable Minister of Finance, Medical Education and Parliamentary Affairs, and Sri Sandeep Singh ji, Honorable Minister of State for Medical Education and Finance, have been constantly guiding us in the development of the institute, for which the institute is ever thankful to them. We are thankful to our President and Chief Secretary, Government of UP, Sri Arvind Kumar Tiwari ji, and Dr. Rajneesh Dwivedi, Additional Chief Secretary, Department of Medical Education, who have been supporting us in executing the mandate given to us. Mr. Balram Haldar, the 37th Foundation Day Auditor, who is well known to all of us for his dynamism in combating the coronavirus,